کسی ہندو سکھ کو آپ اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گوارہ کریں گے تو وہ نماز پڑھیں؟ کبھی بھی گوارہ نہیں کریں گے. کہیں گے ان کے یہاں نماز ہے ہی نہیں، ان کے یہاں روزہ ہے ہی نہیں، ان کے یہاں یہ نہیں وہ نہیں. تو جب یہ مسلمان ہیں ہی نہیں، ہمارے نہیں، قومی اسمبلی کے فیصلے کے مطابق یہ مسلمان نہیں ہے، تو پھر مسلمانوں کی اصطلاحات کو کیوں اختیار کرتے ہیں، کیوں اپنا؟ تو یہ تو اسی طرح ہے کہ آپ کسی گستاخ رسول سے کہیں کہ تم باہر نکل کر گستاخی نہ کرو، چار دیواری میں جا کر لو. تو یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کے آیا ہے، اس کے اندر اور بھی کئی سکم ہیں جو ماہرین ہیں قانون جو ہیں وہ اس کی طرف بتائیں گے. ایک چور راستہ قادیانیوں کو دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی تبلیغ کریں، قادیانیت کو پروموٹ کریں. تو سپریم کورٹ کا تقدس بالکل سر آنکھوں پر، لیکن یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں فیصلہ وہی ہونا چاہیے جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہو. دیکھیں، پرنٹنگ مٹیریل اگر تو ان کی اپنی کتاب کی حد تک ہوتا تو وہ ضرور دیتے، وہ چاہے پبلکلی دیتے یا پرائیویٹلی دیتے، نو ایشو. مسئلہ یہ ہے کہ جو پرنٹنگ مٹیریل ہے وہ قرآن کی تحریف ہے. قرآن کی تحریف نہ پبلکلی الاؤ ہے نہ پرائیویٹلی الاؤڈ ہے. تو وہ اپنے بچوں کو دیں یا کسی اور کے بچوں کو دیں، قرآن کی تحریف ہو نہیں سکتی، یہ ایک قانون ہے. ایک مسلمان بھی اس بات کو قطعاً گوارہ نہیں کرتا کہ کوئی کسی ایسی تحریک کو پنپنے دیا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتی ہو اور وہ اس بات کی دعوت کو عام کرنا چاہتی ہو. اس بات کو کان کھول کر سن لیں. یہ مختلف لالچ اور مختلف دھمکیوں میں آ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. عزیز پاکستانیوں، ہمارا ملک ایک اسلامی ریاست ہے اور اس اسلامی ریاست کے اندر عقیدہ ختم نبوت بنیادی عقائد میں شمار ہوتا ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک بار پھر عقیدہ ختم نبوت زبان زد عام ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے سے امت مسلمہ اور ساری قوم کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. وہ جذبات جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے رکھتے ہیں اور وہ جذبات جو ہم قرآن پاک کے لیے رکھتے ہیں. جی ہاں ناظرین، سپریم کورٹ کا فیصلہ جو کہ 23 جولائی 2024 کو آیا، ہر طرف اس فیصلے کی مذمت کی جا رہی ہے. آخر اس فیصلے میں ایسا کیا ہے؟ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس فیصلے کی کیا وجوہات ہیں، یہ سارا مبارک ثانی کیس کیا ہے، قادیانیوں کے ساتھ مسلمانوں کا جو اختلاف ہے، کیا قادیانی غیر مسلم ہے یا مسلمان، اور یہ مبارک ثانی کیس کا فیصلہ مسلمانوں کی امنگوں کے مطابق ہے یا یہ قانون کے تقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں. ان تمام معاملات پر بات ہوگی اور انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے اندر ہم امت مسلمہ کے اس اہم ترین اور سینسٹیو مسئلے کو ڈسکس کریں گے. مبارک ثانی کیس کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی سکرینز کے اوپر مبارک ثانی کیس کی ابتدا جس ایف آئی آر سے ہوئی اس ایف آئی آر کو ملاحظہ کیجیے. اور 7 مارچ 2019 کو جب اس کیس کا آغاز ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مبارک احمد قادیانی نامی شخص نے نہ صرف یہ کہ ہمارے مسلمانوں کے قرآن پاک کی تحریف کی، نہ صرف یہ کہ اس کو لکھا، بلکہ تحریر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو پرنٹ کروایا اور پرنٹ کروانے کے بعد اپنے بچوں کے اندر تقسیم کیا. اس پورے واقعہ کی خبر جب مسلم کمیونٹی کو ہوتی ہے تو ان کے اندر ایک بے چینی کی لہر دوڑتی ہے اور وہ سب لوگ پولیس سے رجوع کرتے ہیں اس پورے واقعہ کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے کے لیے. لیکن ناظرین، اس پورے واقعہ کی ایف آئی آر کو درج کروانے کے لیے 2022 کا وقت آ جاتا ہے اور 6 دسمبر 2022 کو یہ ایف آئی آر درج کی جاتی ہے، جس کا ہم آپ کو اپنی سکرینز کے اوپر ویو دکھا رہے ہیں. اس میں درج ہے کہ ایک تحریف شدہ تفسیر صغیر کے نام سے لٹریچر، ایک ایسا لٹریچر جو متنازعہ لٹریچر ہے، جس کی ایک اسلامک
स्टेट के अंदर तकसीम करने की इजाज़त नहीं है। आईने पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देता, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन इसकी तकसीम सरेआम हो रही होती है और फिर ये मामला कोर्ट में जाता है, लोअर कोर्ट से होते होते हायर कोर्ट तक पहुंचता है और हायर कोर्ट से होते होते ये मामला पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पूरे मामला की सुनवाई होती है, दलाइल पेश किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस्लामी नजरियाती कौंसिल से भी रुजू करती है और इस्लामी नजरियाती कौंसिल के उलमा कराम से ओपिनियन मांगी जाती है, राय मांगी जाती है। एक कुरान पाक की आयत की बिना पर ला इकराहा फिद्दीन कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं और दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कोई जबर की इजाजत नहीं है। इस आयत की बेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट रुजू करती है मुख्तलिफ उलमाए कराम के साथ और उलमाए कराम मुत्तफिका तौर पर अपनी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट को भेजते हैं कि ये सारी प्रैक्टिस जो कादियानियों की जानिब से इस्लामिक स्टेट में की गई ये खिलाफ शरीयत है। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले के दो पहलू हैं। एक इसका मजहबी और इस्लामिक पहलू है और दूसरा इसका कानूनी पहलू है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने इसको अपने मजहब यानी कि दीन इस्लाम की रोशनी में एक्सप्लेन किया, लेकिन इसके फैसले को मुरतब करते वक्त कानूनी माहिरीन ने कानून के किन नकात का सहारा लिया, आईने पाकिस्तान की कौन सी दफात इसके अंदर इस्तेमाल हुई, कौन सी शिकें इसके अंदर इस्तेमाल हुई, वो बड़ी दिलचस्प है और इस डिस्कशन से इंशाल्लाह आज आपके ऊपर ये वाज़िया होगा क्या आईने पाकिस्तान के अंदर इस पूरे प्रोसेस को एक्सेप्ट करने की गुंजाइश है या नहीं। और इस पूरे मामले को हम इंशाल्लाह दोनों पहलुओं से डिस्कस करेंगे। आईने पाकिस्तान के मुताबिक ये डिफाइन कर दिया गया है कि कादियानी गैर मुस्लिम है। उसके बाद ये बहस बहुत जरूरी है कि आईने पाकिस्तान की जो दो दिफात इस एफआईआर के अंदर इस्तेमाल की गई हैं वो है आर्टिकल 295 और आर्टिकल 298। इन दो दफात का सहारा लिया गया है एफआईआर के अंदर और इस्तदा की गई कि आप इन दो आर्टिकल्स की बेस पर इस पूरे प्रोसेस को जो कि मुबारक अहमद प्रैक्टिस कर रहे थे उनको सजा का मुस्तहिक करार दिया जाए। अब देखना यह है कि आइन का आर्टिकल 295B और 298C क्या है। जो कोई जानबूझकर कुरान पाक के नुस्खे या इसमें किसी इक्तबास को नुकसान पहुंचाता है या उसकी बेहुरमती करता है या इसे किसी तौहीन आमेज तरीके से या गैर कानूनी मकसद के लिए इस्तेमाल करता है उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। आर्टिकल 295B यह कहता है कि अगर कोई शख्स कुरान पाक के किसी नुस्खे को तहरीफ करके उसको बदलने की या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। सेक्शन 298C कादियानी ग्रुप या लाहौरी ग्रुप का कोई शख्स जो बिलवास्ता या बिलावास्ता खुद को मुसलमान जाहिर करे या अपने मजहब को इस्लाम के तौर पर मौसूम करे या मंसूब करे या अल्फाज के जरिए खा जुबानी हो या तहरीरी या अरबी नकूश के जरिए अपने मजहब की तबलीग व तशहीर करे या दूसरों को अपना मजहब कबूल करने की दावत दे या किसी भी तरीके से मुसलमानों के मजहबी और या किसी भी तरीके से मुसलमानों के मजहबी एहसासात को मजरू करे, उसे किसी एक किस्म की सजाए कैद इतनी मुद्दत के लिए दी जाएगी जो 3 साल तक हो सकती है और वो जुर्माने की सजा का अहल होगा। जी नाजरीन, फैसला अब आपने करना है कि आइन का आर्टिकल 298C क्या कहता है। इस पूरे मामले का जो मजहबी पहलू है उसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मारूफ इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं। हम यकीनन उनकी राय लेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या दीन इस्लाम से मुतसादम फैसला तो नहीं है और अगर मुतसादम है तो किस तरह से है। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शेखुल हदीस मारूफ इस्लामिक स्कॉलर जनाब यूसुफ तैयबी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप चैनल 1 to 1 के आज के इस खास प्रोग्राम में शरीक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे यहाँ आने का शर्फ दिया और मैं हाज़िर हुआ। बहुत मैं समझता हूँ कि ये चैनल 1 to 1 की बहुत बड़ी काविश है। हकीकत में तो हम इस्लाम के अलमबरदार बनते हैं, ये हमारा काम था और इन भाइयों ने ये काम हमारा काम किया है। मैं इनका एहसान मानते हुए यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। तो इन्होंने ये तमाम उलमाए किराम की राय जमा की है कि ये जो फ़ैसला 23/7/2024 में आया है, जिसमें कादियानियों को अपनी तहरीफ शुदा कुरान और अपने मिर्ज़ा को नबी करार देने वाली बातें इसको नशर करने की चारदीवारी में इजाज़त दी है, उसके ख़िलाफ़ ये भाई हमारे खड़े हुए हैं। हकीकत ये है कि इनको कानून इस बात की इजाज़त भी नहीं देता, और अगर कानून देता भी होता तो रब्बुल जलाल इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो इस्लाम के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान में चारदीवारी के अंदर ये जुर्म करें कि वो तहरीफ शुदा कुरान वो लोगों के सामने पेश करें, या जिसमें अपने मिर्ज़े को नबी बनाकर पेश किया गया हो वो दावत यहाँ पर चलाएं। इसकी ना शरीयत इस्लामिया इजाज़त देती है और ना कानून इजाज़त देता है। जुर्म होता है, वो आप बाहर करें तो उसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है, अगर आप चारदीवारी के अंदर करें तो उसका नुकसान थोड़ा कम हो जाता है, मगर वो जुर्म ही रहता है। इसलिए अगर आप हमारा ईमान और गैरत चेक करने के लिए इस तरह के शोशे छोड़ते रहते हैं तो फिर अच्छी तरह समझ लें कि मुसलमान शराबी कबाबी शबाबी भी हो सकता है, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ मामला आता है वहाँ पर वो पक्का मुसलमान होता है और पूरी गैरत के साथ सामने आता है। उलमा तो उलमा हैं, तलबा तो तलबा हैं। एक मुसलमान भी इस बात को कतई गवारा नहीं करता कि किसी ऐसी तहरीक को पनपने दिया जाए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर डाका डालती हो और वो इस बात की दावत को आम करना चाहती हो। इस बात को कान खोल कर सुन लें। ये मुख्तलिफ लालच और मुख्तलिफ धमकियों में आकर वो हुकूमती फ़ैसले हों या अदालती फ़ैसले हों या किसी और लेवल के हों, इनको किसी सतह पर भी कबूल नहीं किया जाएगा। वल्लाहु आलम। बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ मौजूद थे शेखुल हदीस यूसुफ तैयबी साहब। उन्होंने बताया कि उम्मत मुस्लिमा इस पूरे मामले के ऊपर एक ज़ुबान है और ये मुसलमानों के जज्बात से मुतसादम फैसला है। इस पूरे फैसले के ऊपर हम राय लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एक कानूनी माहिर एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब। उनसे हम लाइन पर, वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि वो इस पूरे मामले के कानूनी पहलुओं को कैसे देखते हैं और आर्टिकल 295 और आर्टिकल 298 इस पूरे मामले के अंदर क्या कहता है। जी मतीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। सर, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को और क्या जो जुर्म उन्होंने किया है क्या वो काबिल गिरफ्त है या नहीं? आईने पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान इस बारे में क्या कहता है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, उसके अंदर आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज है। जजमेंट के अंदर कहा गया कि अगर कोई पब्लिकली अपने रिलीजन को, खसूसी तौर पे जो कादियानी ग्रुप हैं, अगर प्रोफेस करते हैं तो ये तो जुर्म होगा, लेकिन अगर प्राइवेट प्लेसेस पे या वर्शिप स्पेसेस के ऊपर वो अपने रिलीजन को प्रोफेस करते हैं तो वो जुर्म नहीं होगा। अब यहां पर मेन इशू आया है तमाम मुस्लिम हल्का बाब को कि शायद सुप्रीम कोर्ट बेल देती उस हद तक तो कोई इशू ना होता, लेकिन उस बेल के आर्डर के बाद जो उन्होंने गाइडलाइंस फराहम किए हैं, जो उसके ऊपर तबसरा फराहम किया है, जो फाइंडिंग दी है, उस फाइंडिंग के अंदर कहीं ना कहीं एरर्स हैं। अब वो एरर्स क्या हैं? वो एरर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के अंदर बड़ा वाजिया कर दिया गया कि सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट हिज रिलीजन। इसका मतलब है कि कानून के अंदर रहते हुए वो अपने मजहब की तरवीज भी कर सकता है, तबलीग भी कर सकता है और उसके ऊपर अमल पैरा भी हो सकता है। जब हम कानून की बात करते हैं तो हमारे पास आता है पाकिस्तान पीनल कोड, जिसकी जो सेक्शंस हैं, मुबारक सानी केस को अगर मैं डील करूं तो सेक्शन 298 ए, बी और सी इसके ऊपर अट्रैक्ट होती है। सेक्शन 298 सी उसके ऊपर लगेगी जो खुद को कादियानी होने के बावजूद मुस्लिम शो करेगा
और अपने रिलीजन को कादियानी रिलीजन नहीं बल्कि इस्लामिक रिलीजन के तौर पर प्रोपागेट करेगा। दिस इज मेन ऑब्जेक्शन इन दिस केस। अब एक चीज तो बड़ी वाजिया है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर कोई अपने रिलीजन को खुसूसी तौर पर कादियानी ग्रुप प्रोपागेट करते हैं तो अगर तो वो पब्लिक स्पेसेस पे करते हैं तो जुर्म है, लेकिन अगर प्राइवेट स्पेसेस पे करते हैं या वर्शिप स्पेसेस के ऊपर करते हैं यानी इबादत गाहों में करते हैं तो जुर्म नहीं है। यहां पर एक थिन लाइन डिफरेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को अंडर लॉ क्लियर करना बहुत जरूरी है कि सेक्शन 298C के अंदर कहीं भी पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर कह दिया कि कोई भी कादियानी, कोई भी अहमदी किसी भी शख्स को अपने रिलीजन की तरफ यह कहते हुए बुलाता है कि यह रिलीजन ही इस्लाम है और मैं मुस्लिम हूं, तो उसको सजा मिलेगी 3 साल अगर जुर्म साबित हो जाता है। इसके अंदर कहीं यह नहीं कहा गया कि वो पब्लिक स्पेसेस पे आकर यह करता है या अपनी वर्शिप स्पेसेस में या प्राइवेट प्लेसेस में करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि अगर कोई अपनी वर्शिप स्पेसेस के अंदर या अपनी प्राइवेट प्लेसेस के अंदर ये कोई वर्किंग करता है, इस तरह की कोई बात करता है तो वो जुर्म नहीं है, तो ये जो फाइंडिंग है उनकी ये इरोनियस है, डेट इज नॉट बीइंग पास्ड बाय अप्लाइंग प्रॉपर जुडिशियल माइंड। उसकी वजह यह है वर्शिप स्पेस जो होती है वो महकमा औकाफ के तहत वो डील की जाती है। वर्शिप स्पेस जो होती है इबादत गाह, वो एक प्राइवेट प्लेस नहीं होती, उसको हम पब्लिक प्लेस कहते हैं। तो वहां से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन बाकी लोगों तक पहुंचती है जिनके जज्बात को ठेस पहुंचेगी तो वो भी जुर्म ही कहलाएगा। तो मैं अगर सुप्रीम कोर्ट की इस पूरे इस जजमेंट को देखूं तो इस हद तक तो मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ अग्री करूंगा कि 6 महीने अगर मुबारक सानी की सजा बनती थी और अगर 13 महीने हो गए हैं उसको तो उसकी जमानत हो गई है तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन उसके अंदर फाइंडिंग ये दे दी जाए कि कादियानी या लाहौरी ग्रुप को इजाजत मिल जाए कि अपनी वर्शिप स्पेसेस के अंदर वो खुद को मुस्लिम शो कर सकते हैं या खुद को अपने रिलीजन को इस्लाम कह सकते हैं, इस हद तक की इजाजत मिल जाए तो यहां पर जजमेंट को समझने में एरर आ रहा है। जजमेंट में कहीं यह नहीं कहा गया कि कादियानी अपनी वर्शिप स्पेसेस के अंदर या प्राइवेट स्पेसेस के अंदर खुद को मुस्लिम कह सकते हैं या खुद के रिलीजन को इस्लाम कह सकते हैं। उसको गोलमोल इस तरह किया गया ये कहकर कि वो अपनी वर्शिप स्पेसेस और प्राइवेट स्पेसेस के अंदर जो चाहें करें। यहां पर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि वो सेक्शन 298C का प्रॉपर पोस्टमार्टम करते, कि बेल ग्रांट करते, लेकिन लिखते कि प्राइवेट स्पेसेस और वर्शिप स्पेसेस के अंदर भी 298C नहीं हो सकती, 298B नहीं हो सकती, 298A नहीं हो सकती, जिस केस का रेफरेंस उन्होंने जहीरुद्दीन केस के जरिए दिया। डेट्स ऑल। मतीन साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उर्दू जुबान में जारी किया गया है, क्या इसकी कोई खास वजह है या कानूनी तौर पर इसको उर्दू जुबान में जारी करना जरूरी था? इस हवाले से कानून क्या कहता है? आसिया का एक केस आया था, वो भी उर्दू के अंदर शाया किया गया। इसी तरह कई केसेस आए हैं जिसको उर्दू में शाया किया गया। उसकी वजह यह है कि कई मर्तबा चंद शर्अंगेज अनासर जजमेंट को अपनी रोशनी के अंदर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमेशा जिस जजमेंट के अंदर कोई इशू अराइज हो जाए रिलेटेड टू रिलीजन, रिलेटेड टू डिसहार्मनी, तो सुप्रीम कोर्ट की कोशिश होती है कि उस जजमेंट को रिपोर्ट किया जाए और रिपोर्ट करने के बाद उसके अंदर एक चीज को अहमियत दी जाती है कि वो जजमेंट इस लैंग्वेज में लिखी जाए कि आम लोग समझ सकें, ताकि अगर एक वर्ल्ड वाइड उसका इंपैक्ट आना है मिस इंटरप्रिटेशन से या मिसअंडरस्टैंडिंग से, उसको रोका जा सके। मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और उसके बाद हम इजाजत चाहेंगे। आप ओवरऑल इस पूरे मामले को क्या देखते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाले दौर में अहमदियों और कादियानियों के लिए एक शेल्टर साबित होगा और इसको बेस बनाकर वो अपनी चार दीवारी के अंदर और भी कई ऐसे काम कर सकते हैं जो कि मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होंगे? किसी एक जजमेंट से कभी भी किसी ग्रुप को इजाजत नहीं मिल सकती कि वो कानून की खिलाफ वर्जी करे और ना आवाम करने दे सकती है। ये एक पब्लिक ओपिनियन है जिसको कभी हम तोड़ नहीं सकते। सेकेंडली, अगर मैं इस जजमेंट की बात करूं तो इस जजमेंट में कहीं भी ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप अपने मजहब को इस्लाम कह सकता है या अपने रिलीजन को
इस्लाम के तौर पर प्रोपागेट कर सकता है या खुद को मुस्लिम कह सकता है या 298 ए बी या सी की खिलाफ वर्जी कर सकता है। हाँ, इसको गोल मोल करके लिखना कि प्राइवेट कैपेसिटी के अंदर वो कुछ भी कर सकते हैं, पब्लिक कैपेसिटी के अंदर वो कुछ नहीं करेंगे, तो यहां पर मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ी जबरदस्त और स्ट्रिक्ट फाइंडिंग देने की जरूरत थी, जो कि शायद एक कमी रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर। कानून का स्पेसिफिकली सेक्शन 298 ए बी सी को प्रॉपर्ली उसकी तशरीह ना करना, यह मेरा ख्याल ज्यादती होगी। और अगर उस ज्यादती को जो 10% हुई है उसको ठीक कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि जो मुस्लिम उम्मा के चंद जज्बात मुतासर हुए हैं उसको काफी हद तक बेहतरी मिल सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, अब फैसला आपने करना है कि दस्तूर पाकिस्तान किसी भी शख्स को जो कि गैर मुस्लिम अक़लियत है और कादियानियत से उसका ताल्लुक है, उसको इन तमाम एक्टिविटीज़ की रियासत पाकिस्तान में इजाज़त देता है या नहीं। इस पर राय लेने के लिए हमारे साथ एक मारूफ मजहबी स्कॉलर और आलम दीन जनाब प्रोफेसर मोहम्मद बशारत सदीक हजारवी साहब मौजूद हैं। हजरत, हम आपसे ये राय लेना चाहते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस फैसले को जो कि सुप्रीम कोर्ट की आला अदलिया ने पेश किया, इसको मजहबी लिहाज से आप कैसे देखते हैं और क्या ये मुस्लिम उम्मत के जज्बात की अक्कासी करता है या नहीं? अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम के बुनियादी अक़ायद में से है, बल्कि यूँ कहें कि इस कदर हसास और अहमियत का हामिल अक़ीदा है कि पूरे दीन इस्लाम की इमारत और बिल्डिंग जिस बुनियाद पर खड़ी है वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। नबी अलैहिस्सलाम के बाद अब कोई दूसरा नबी क़यामत तक कायनात में नहीं आ सकता। कुरान मजीद की कम व बेश 100 आयात हैं, कसरत के साथ हदीस हैं जो सराहतन और इशारतन नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत पर दलालत करती हैं और दलील हैं। ये इस कदर असास अक़ीदा है कि एक तो यह है कि कोई बंदा नबूवत का दावा करता है तो इससे तो दायरे इस्लाम से खारिज है, मुर्तद है। फुक़हा ने यहाँ तक लिखा कि कोई बंदा तमन्ना करे कि काश में नबी होता तो इससे भी वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। हज़रत, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप मुबारक अहमद कादियानी की इस रिहाई को कैसे देखते हैं? देखें, वो तो अब आईनी इसमें माहिरीन बताएंगे कि कानून के अंदर उसके क्या सूरत मौजूद है, लेकिन असल जो वहाँ था वो कुरान मजीद की तहरीफ़ है। कुरान मजीद की तहरीफ़ और उसके माना व मफ़हूम को बदलना और मनमानी उसकी तशरीहात करना, ये तो किसी सूरत में भी इसकी इजाज़त नहीं हो सकती। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं कि वो जिस कानून के तहत उसकी रिहाई हुई है वो कानून उस पर लागू नहीं होता। वो एक कादियानी शख्स है और एक मज़मूम मकासद के लिए कुरान मजीद की आयात जो हैं उसको उसने अपनी मनमानी तशरीहात की और इसमें हमारे उलमा राय दे चुके हैं। लेकिन अब जो फैसला है इसमें मसला सिर्फ रिहाई का नहीं है, मसला ये है कि जो रिलीफ जो उन्होंने नहीं मांगा वो रिलीफ भी उनको दे दिया गया। हमने थोड़ा सा ये समझना है कि इसका मतलब क्या है। निजी तौर पर या खुफिया तौर पर या चार दीवारी के अंदर तबलीग का मकसद ये हुआ कि वो अलल ऐलान ख़त्म नबूवत का इनकार न करें, लेकिन चार दीवारी में बैठकर वो नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत का इनकार करें, कादियानियत को प्रमोट करें, किसी मुसलमान को घसीट कर ले जाएं, उसको कादियानियत की तालीम दें, नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत पर डाका डालें। और फिर जो मिर्ज़ा कादियानी ने शायर इस्लाम की और मुक़द्दस शख्सियात की और पाकान उम्मत की तौहीन की है, वो चार दीवारी में बैठकर उसकी तबलीग करते रहे, तो ये किसी तौर पर भी पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों के लिए काबिल कबूल, बल्कि आलम इस्लाम के लिए काबिल कबूल किसी तौर पर भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह जुर्म चार दीवारी के बाहर जुर्म होता है, चार दीवारी के अंदर भी वो जुर्म है। तो ये तो इसी तरह है कि आप किसी गुस्ताख रसूल से कहें कि तुम बाहर निकल कर गुस्ताखी ना करो, चार दीवारी में जाकर कर लो। तो ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, इसके अंदर और भी कई सुकुम हैं जो माहिरीन हैं कानून जो हैं वो इसकी तरफ बताएंगे, लेकिन जो इसका एक खुलासा है वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि किस तरह एक चोर रास्ता कादियानियों को दिया जा रहा है कि वो अपनी तबलीग करें, कादियानियत को प्रमोट करें। तो सुप्रीम कोर्ट का तकद्दुस बिल्कुल सर आंखों पर, लेकिन ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ फैसला वही होना चाहिए जो शरीयत मुताहरा के मुताबिक हो। जी नाज़रीन, अब हम चलते हैं प्रोग्राम को लेकर आगे और हमारे साथ एक इंतहाई मुस्तनद आलम दीन और इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं। शेखुल हदीस हज़रत मौलाना नईमुद्दीन साहब मौजूद हैं और लाइव कॉल पर हमारे साथ हैं, और मैं चाहूँगा कि वो अपनी राय सुप्रीम कोर्ट के और काजी फायद ईसा साहब के इस फैसले के ऊपर
جی حضرت، آپ کیسے دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کو اور اس کے اوپر آپ کا ذاتی تبصرہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے آئین پاکستان سے متصادم بیان دیا ہے، فیصلہ دیا ہے۔ 1974 کے آئین میں جب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا تو پھر ان کا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ہی ہم سمجھتے ہیں کہ غلط زندیقیت ہے یہ، کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں اور لوگوں کو باور کرائیں کہ نہیں ہم مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے۔ جو آئین پاکستان کو نہ مانے، پھر آپ سوچیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ جسٹس صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ تو آئین پاکستان سے غداری ہے۔ تو ہم جسٹس صاحب کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، بلکہ مذمت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب تو صاف یہی نکلے گا کہ وہ باہر لوگوں کو مرزائی نہ بنائیں، گھر میں رہ کر مرزائی بناتے رہیں۔ کسی ہندو سکھ کو آپ اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گوارہ کریں گے تو وہ نماز پڑھیں، کبھی بھی گوارہ نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے ان کے یہاں نماز ہے ہی نہیں، ان کے یہاں روزہ ہے ہی نہیں، ان کے یہاں یہ نہیں وہ نہیں۔ تو جب یہ مسلمان ہیں ہی نہیں، ہمارے نہیں، قومی اسمبلی کے فیصلے کے مطابق یہ مسلمان نہیں ہے، تو پھر مسلمانوں کی اصطلاحات کو کیوں اختیار کرتے ہیں، کیوں اپناتے ہیں؟ اس لیے ہم تو اس پر احتجاج کرتے ہیں اور ہم جسٹس صاحب کے بیان کو مسترد کرتے ہیں، ان کے بیان کی مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے یا تو جہالت سے کام لیا یا تجاہل عارفانہ سے کام لیا، اور اس کے پس پردہ ان کے بارے میں جو لوگوں کی رائے بن رہی ہے کہ شاید وہ مرزائیت نواز ہیں اور شاید انہوں نے کچھ اور دندہ کر لیا ہو، یہ ان کے بارے میں لوگوں کی رائے بن رہی ہے۔ تو کیا یہ کوئی اچھی بات ہے کہ ہمارے ملک کے چیف جسٹس کے متعلق یہ رائے بنے کہ وہ مرزائیت نواز ہیں، اور کچھ کہیں کہ جن انہوں نے پس پردہ کوئی سودا کر لیا ہے، یہ باتیں ان کے متعلق بنے؟ یہ ہمارے چیف جسٹس کا کام ہے۔ اس لیے ہم جسٹس صاحب کے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں اور اسے مسترد کرتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ جی ہاں ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی تفریق اور بغیر کسی تخصیص کے اس پورے معاملے کے اوپر ایک ہی اوپینین رکھتے ہیں، اور وہ یہ اوپینین ہے کہ یہ مسئلہ ایک انتہائی سینسٹیو مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر جو سپریم کورٹ کی اعلیٰ عدلیہ نے اپنی وضاحت کی ہے اور یہ فیصلہ جاری کیا ہے، یہ مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی نہیں کرتا۔ اب کیا یہ قانونی طور پر درست فیصلہ ہے یا نہیں، اور اس کے اندر کسی قسم کے کوئی سکم موجود ہیں، تو اس کے اوپر تو رائے قانونی ماہرین دے سکتے ہیں، اور اس پر ہم تو کسی قسم کی رائے نہیں دے سکتے۔ ہم نے قانونی ماہرین سے رابطہ کیا اور اس پہ بھی تمام ماہرین نے ملی جلی ایک اوپینین ہمیں دی، جس سے ہم بھی کوئی واضح فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے جس کے اوپر حکومت وقت کو غور کرنا چاہیے کہ اگر آپ کا قانون قادیانیوں کو ان تمام ایکٹیویٹیز کی اجازت دیتا ہے تو پھر ہمیں ریاست کے اس قانون کے اوپر غور کر کے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ریاست پاکستان کا جو دستور ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دستور قرآن اور سنت کے تابع ہوگا، اور قرآن اور سنت کے تابع ریاست کے دستور کے اندر ان تمام ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں ہے۔ ان تمام ایکٹیویٹیز کو کنڈیم کرنا چاہیے، ہر سطح پر کرنا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے قادیانیوں کو ایک شیلٹر مل جائے، ایک پناہ مل جائے، اور وہ اس کی آڑ کے اندر وہ تمام ایکٹیویٹیز کریں جو مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے والی ہوں اور مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہوں۔ آج کے اس پروگرام کے اندر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ شاد رہیں، آباد رہیں، ہمیشہ عالم اسلام اور پاکستان کی سربلندی کے لیے کام کریں، اپنا خیال رکھیں۔ انجینئر فہیم ارشد کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔